Namaste students. Today in this video we will study about social, religious, educational, art and architectural condition of South Indian kingdoms. आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, कला और स्थापत्य कला इन सभी फील्ड्स में साउथ इंडिया में जो किंगडम्स थे वहाँ पे किस प्रकार के कंडीशन थे उनका स्टडी करेंगे। Dear student, first of all we will study about the social condition of South India. Dear student, in South Kingdom there were caste ridden system. Caste ridden system in the society, that means there were social discrimination in the society. Lower caste especially dominated by the higher castes like ब्राह्मण और क्षत्रिय जो जिस तरह के जो लोग थे, कास्ट के जो लोग थे, उनके द्वारा जो लोअर कैटेगरी के लोग होते थे उनको डोमिनेट किया जाता था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। फार्मर्स हैव नॉट देयर ओन फील्ड और ओन lands. They cultivated the land of king and they also paid various type of taxes to the farmers also. Dear student, after this we will study about the religious condition. In South India, most of the people were follower of Hinduism. ज़्यादातर से ज़्यादा लोग जो थे वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे। In at that time there were two sects of Hinduism, that was Shivism and Vaishnavism. Some Hindu people were worship the god Vishnu and some were the follower of Shiv. At that time follower of Jainism and Buddhism were less in comparison of the North India. North India में हम लोग पढ़े थे कि most of the kingdoms were the follower of Buddhism and Jainism, but in South India most of the people or kingdoms were the follower of Hinduism. जैनिज्म और बुद्धिज्म को मानने वालों की संख्या कम थी, जबकि हिंदुइज्म को मानने वाली, हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या ज़्यादा होती थी। Dear student, in the south, Kanchipuram, it was the most religious center of South India. South India का सबसे प्रमुख जो धार्मिक स्थल था, धर्म का केंद्र बिंदु था, वह कांचीपुरम था। And it was a great center of education, pilgrims etc. एजुकेशन और पिलग्रिम्स यात्रियों के लिए भी यह एक प्रकार का सेंटर का ही काम करता था। इस समय जो भक्ति संत थे, they started to preach about the teaching of Ramayana, Mahabharata etc. and many books of Sanskrit language were also translated in Tamil language, and the most important work of this period was they write some books in Tamil language like Silapadikaram and Manimekalai also. Just now we will study about the next topic, and that is the education. Now you will study about education of South India. In South, temples were the main center of education. साउथ में जो एजुकेशन का जो केंद्र बिंदु होता था वह टेम्पल होता था। इवन एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क एंड एजुकेशनल वर्क और फिर एनी प्रकार का फेयर हो, ये सभी प्रकार के जो मैटर्स होते थे दैट वेर हेल्ड ऑन द टेम्पल्स, and each temple had an
अटैच्ड मठ, प्रत्येक टेम्पल का एक जो है अपना बगल में ही मठ होता था, एंड दैट वाज वर्क एज ए सेंटर ऑफ एजुकेशन, और मठ ही जो होता था वो एजुकेशन सेंटर के रूप में काम करता था। स्पेशली इन दैट पीरियड द मेन लैंग्वेज वाज संस्कृत, बट तमिल, कन्नड़, तेलुगु इट वाज आल्सो ऑन प्रोग्रेस एट दैट टाइम, क्योंकि ये सब उसमें वहाँ के लोकल लैंग्वेज थे, इसलिए इन भाषाओं का भी बहुत तेजी के साथ विकास हो रहा था। नाउ वी विल सी अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ साउथ किंगडम्स। साउथ किंगडम्स में कला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में किस प्रकार के विकास हुए उसको हम देखेंगे। रूलर ऑफ साउथ इंडियंस वेयर इंडियाज वेयर पैट्रोन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, दे वेयर ब्रेव, वे बहादुर थे, बट दे वेयर आल्सो पैट्रोन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर आल्सो। They built many rock cut temples like Mahabalipuram temple. It is a chariot temple, यह एक प्रकार का रथ टेम्पल है। महाबलीपुरम का रथ टेम्पल एंड द टेम्पल ऑफ कैलाशनाथ टेम्पल, these are the rock cut temples built by the kings of South India, and the most important work of that time was they built a Shiv temple of Tanjore and bronze statue of Nataraj. These are the two most famous most famous example of art and architecture of Chola period. ये जो दोनों हैं, शिव टेम्पल ऑफ तंजौर और ब्रोंज स्टैचू ऑफ नटराज, यह चोला काल के जो है बहुत ही प्रमुख स्थापत्य कला के एग्जाम्पल हैं, जिसको अभी हम आपको इसी वीडियो में फिगर के माध्यम से दिखाते हैं। इसमें इसको आसानी से देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट इज द महाबलीपुरम टेम्पल, सेकेंड इज द कैलाशनाथ टेम्पल, एंड यह जो है आपका ये नटराज टेम्पल है। यह चोल शासकों के द्वारा बनवाया गया बहुत ही। डियर स्टूडेंट, just you have read that there were the many bhakti sants who preached the teachings of Ramayana and Mahabharata in South India. In this series we will study some important fact about Shankaracharya, that is in your book. Shankaracharya was a great philosopher and he gave a theory or that was the doctrine of अद्वैतवाद। इनका जो थियरी है, इनका जो सिद्धांत है, उसको अद्वैतवाद बोला जाता है। और अद्वैतवाद का मीन्स होता है कि द एब्सोल्यूट इज वन एलोन। इट मीन्स दैट ईश्वर जो है एक है और वह सर्वशक्तिमान है, उस पर किसी का बस नहीं चलता है। डियर स्टूडेंट, शंकराचार्य टॉट द रूल ऑफ भक्ति, योगा एंड कर्म। उन्होंने जो शिक्षा दिया वह भक्ति कीजिए, योग कीजिए और अपना कर्म कीजिए, यानी कि तीन चीज़ों को उन्होंने ज़्यादा बोल दिया कि सबको जो है कि अपने भक्ति का भाव होना चाहिए सबके अंदर, सबको दिन प्रतिदिन योगा करते रहना चाहिए और साथ ही साथ अपने कर्म को करते रहना चाहिए। डियर स्टूडेंट, अद्वैतवाद इज द अवेयरनेस ऑफ डिवाइन इन एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। शंकराचार्य सजेस्टेड सत्संग एज द वेरी फर्स्ट स्टेप इन साधना। उन्होंने बताया कि साधना करना है तो सबसे पहले आपको सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग दैट मीन्स अच्छे लोगों का संग, यानी कि जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उन अच्छे वर्ग के अच्छे लोग हैं, उनका हमको सत्संग करना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा, तब जाकर के हम जो है किसी भी प्रकार की साधना में लीन हो सकते हैं। उन्होंने साधना को स्प्रेड करने के लिए या फिर जो सत्संग है उसको सही ढंग से संचालित करने के लिए भारत के चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना किया। He established 4 मठ in 4 corners of India। किस लिए? To spread the message of अद्वैतवाद all over the country।
सत्संग के माध्यम से अद्वैतवाद के जो मैसेज थे उस मैसेज को ऑल ओवर कंट्री स्प्रेड करने के लिए उन्होंने इंडिया के चारों कोनों में 4 मठों का निर्माण किया। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ दिस टॉपिक इज द नेम ऑफ 4 मठास। इस चारों मठों का जो नाम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक में, एंड दैट इज द नॉर्थ ज्योतिरा मठ एट बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में जो मठ है जिसको जो कि भारत के नॉर्थ साइड में पड़ता है, जिसको बोला जाता है ज्योतिरा मठ। अभी अभी हमने बताया कि इन द 4 डायरेक्शन दे इस्टेब्लिश 4 मठ, तो चारों दिशाओं में हम मठों का नाम पढ़ेंगे। एंड इन द वेस्ट और पश्चिम में जो मठ था दैट वाज शारदा पीठ मठ एट द्वारका। द्वारका में पड़ता है पश्चिम में शारदा पीठ, और पूर्व में है गोवर्धन मठ, पुरी में पड़ता है उड़ीसा के आसपास में, पूरी उड़ीसा में है। एंड 4th इज इन साउथ, और जो चौथा मठ है जो दक्षिण में है उसका नाम है श्रृंगेरी मठ, और श्रृंगेरी जो है श्रृंगेरी में ही पड़ता है। डियर स्टूडेंट, ही अलाइव ओनली 32 ईयर्स, मात्र 32 साल तक ही जीवित रहे, लेकिन उनका जो डॉक्ट्रिन्स था, अद्वैतवाद का जो सिद्धांत था, वो बाद में चल करके यह प्रिंसिपल बहुत ही फेमस हो गया। Dear student, in this video you will also see the exercise A, B and C. I will complete 3 exercise in this video. First is you will listen only carefully, and after that you can solve them in your book. Who was the founder of Chola dynasty? I have already explained it. Vijayalaya. The famous temple built by Rajas first at Tanjore was राजराजेश्वर टेम्पल, यानी कि राजराज फर्स्ट के द्वारा तंजौर में बनवाया गया जो टेम्पल था दैट वाज नोन एज राजराजेश्वर टेम्पल। एंड रिमेंबर इट आल्सो द नेक्स्ट नेम वाज राजेश्वर टेम्पल वाज द बृहदेश्वर टेम्पल। एंड थर्ड क्वेश्चन इज विच किंगडम गेव ए फाइनल ब्लो टू द पांड्या। पांड्या को जो है कि फाइनल ब्लो किसने दिया, यानी बाहर किसने किया कॉन्टेस्ट से, वह था विजयनगर एम्पायर। द टर्म मंडलम स्टैंड फॉर, मंडलम क्या था, मंडलम वाज ए प्रोविंस, वह एक प्रकार का प्रोविंस होता था। एंड द क्वेश्चन ऑफ 4 इज व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ चोला रूलर्स। तो जो आय का जो प्रमुख स्रोत था चोल शासकों का वह था लैंड टैक्स, एंड दैट वाज पेड बाय द फार्मर्स। नाउ यू विल सी द fill in the blanks of this topic chapter. The first is the during 750 CE साउथ इंडिया साए रूल्स ऑफ, यानी कि 750 में साउथ इंडिया में कौन कौन से किंगडम्स थे जो रूलिंग कर रहे थे, दे वेयर द चोला, पांड्या एंड चेरा। यू विल नॉट फॉलो द बुक, यू विल लिसन टू मी। बुक में जो लिखा हुआ है उसको नहीं देखेंगे, बल्कि जो हम बोलेंगे उसको ध्यान से सुनना है। You will fill up Cholas, Cheras and Pandyas. The second is Indian historians believe that Chalukyas were, भारतीय जो इतिहासकार हैं वैसा मानते हैं कि चालुक्य क्या थे, तो they were क्षत्रिय। और इसमें जो भी स्पेलिंग्स हैं वो मिस्टेक हैं, चूंकि यह किसी बच्चे की बुक है इसलिए इसमें आप लिखेंगे KSHATRIYA। थर्ड इज डिप्टेड पल्लव, चोलों ने क्या किया, पल्लवों को हराया, चोलाज भरेंगे। एंड सक्सीडेड राजराज, राजराज बैठा कब, राजेंद्र चोल फर्स्ट। इन 4 यू विल फिल अप राजेंद्र चोल फर्स्ट। एंड इन 5 मेन सोर्स ऑफ एजुकेशन, क्या भरेंगे इसमें, टेम्पल्स। वाई, बिकॉज जस्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट टेम्पल्स वेयर द मेन सेंटर ऑफ education. Now we will see the question number 5, sorry question exercise number C. अब हम exercise number C देखेंगे, and C is saying that short name the kings as per their dynasties and arrange them according to their period. It is just as a homework for you. You will arrange them. First is मरुबर्मन, अवनी सुलेमानी, परांतक फर्स्ट, विजयालय, कांडूमकोरी, राजराज, जलबर्मन, सुंदर पांडे। दीज आर द नेम ऑफ सम रूलर्स एंड देयर आर द नेम ऑफ 2 डायनेस्टीज, चोला डायनेस्टी और पांड्या डायनेस्टी। अब इनके जो नाम हैं
उस नाम को कौन चोला डायनेस्टी से बिलोंग करता है और कौन पांड्या डायनेस्टी से बिलोंग करता है इसमें लिखना है, लेकिन उनका जो सीक्वेंस है, थ्रोन पर जो बैठने का जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में ही लिखेंगे। एज एग्जाम्पल मैं बता दूं कि चोला का जो फाउंडर था दैट वाज विजयालय, तो विजयालय को पहले लिखेंगे न कि दूसरे को लिखेंगे। उसी तरह से पांड्या डायनेस्टी का जो फाउंडर था दैट वाज कंडुकोरी, तो कंडुकोरी को पहले लिखेंगे न कि दूसरे को पहले लिखेंगे। इस तरह से पूरा चैप्टर फाइनल कर लेंगे। एंड द रिमेनिंग पार्ट आई विल राइट द एक्सरसाइज D and E on next day. Okay, thank you.